એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આપણે જણાવી દઉં, જમ્મુ કાશ્મીરમાં બ્લેકઆઉટ જાહેર થયો છે। જી હા, જમ્મુ કાશ્મીરની અગર અત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો બ્લેકઆઉટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે। ચોક્કસથી જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે, કંઈ પણ મોટું કોઈ પણ ક્ષણે કોઈ પણ સેકન્ડે થઈ શકે છે। જમ્મુ એરપોર્ટ પર હુમલો થયો છે અને હુમલો થતાં જ બ્લેકઆઉટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર સ્પષ્ટ રીતે બ્લેકઆઉટ જાહેર થયું છે। આ હુમલો ખૂબ જ ખતરનાક હોવાની પણ વાત ક્યાંક સામે આવી રહી છે। આ તમામની વચ્ચે આપણે સમજવું પડશે કે જે રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, ઓપરેશન આક્રમક થઈ રહ્યું છે, બંને સાઈડથી થઈ રહ્યું છે। પાકિસ્તાન રોકશે નહીં, પાકિસ્તાન સમજશે નહીં અને દ્રશ્યો પણ અમે હવે તમને બતાવીશું। જમ્મુ કાશ્મીરની જ્યારે વાત કરી રહ્યા છે, હાલ બ્લેકઆઉટ જાહેર થઈ ગયું છે અને એક મોટો હુમલો જમ્મુ કાશ્મીર પર કરવામાં આવ્યો છે। જસ્ટ મારો સવાલ ઉરુજભાઈને હતો, જે વિસ્તારોના નામ બોલ્યા એમાંનું એક જમ્મુ કાશ્મીર હતું અને એ વાત અત્યારે સાચી સાબિત થઈ। એરપોર્ટ પર રોકેટથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ખૂબ મોટી એક ઘટના અહીંયા સામે આવી છે। આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો, જે રીતે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરના નાગરિકો માટે અત્યારે ચિંતાની વાત, જમ્મુમાં આરએસપુરા સેક્ટરમાં હુમલાનું સાયરન વાગ્યું અને સ્પષ્ટ રીતે અત્યારે કહી શકાય કે આરએસપુરા સેક્ટરની અંદર બ્લેકઆઉટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે। એરપોર્ટ પર રોકેટથી હુમલો થયો છે। સત્તાવારી કેન્ટ ઉપર હુમલાના સમાચાર હાલ સામે આવ્યા છે। આપણા ટીવી સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો, જે રીતે સ્પષ્ટ રીતે આ હુમલાની વાત અત્યારે થઈ રહી છે, યુદ્ધની વાત થઈ રહી છે, વર્તા પ્રહારની વાત થઈ રહી છે। જમ્મુમાં એર સ્ટ્રીપ પર હુમલો થયો છે અને આ હુમલો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે જે રીતે સમય આગળ વધી રહ્યો છે, વધારે એક પેનિક એટમોસ્ફિયર સ્વાભાવિક રીતે જોવા મળી રહ્યું છે। અને હોય પણ કેમ નહીં, જે રીતે અત્યારે આરએસપુરા સેક્ટરની અંદર બ્લેકઆઉટ થયું છે, હુમલો થયો છે, સત્તાવારી કેન્ટ ઉપર હુમલાના જે સમાચાર સામે આવ્યા છે, જોવાનું એ રહેશે કે આ હુમલાની શું અસર થઈ છે, કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે, શું કોઈના જીવ તાળવે ચોંટાયા છે કે કેમ, અને શું વળતો પ્રહાર ભારતીય સેના કેવી રીતે જવાબ આપશે, એના પર હવે સૌની નજર છે। ત્યારે તમામની વચ્ચે જમ્મુ કાશ્મીર જે હંમેશા એક ચિંતિત સેક્ટર કહી શકાય, અવારનવાર ત્યાં સીઝ ફાયર નો ઉલ્લંઘન અને અવારનવાર, હજી તો મેં વાત કરી ડિબેટની શરૂઆતમાં જ કે ઓપરેશન સિંદૂરના 4 કલાક બાદ પર જે રીતે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, એ લોકો રોકાશે નહીં એ વાત સ્પષ્ટ હતી। પાકિસ્તાનની અવરચંડાઈ આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને એનો એક ભાગ છે અને કોઈ પણ ધોરણે તે રોકાવાનું નામ નથી લેતો। ત્યારે જમ્મુ એરપોર્ટ પર જે રીતે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, એર સ્ટ્રીપ પર જે રીતે હુમલો થયો છે, બ્લેકઆઉટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે, એને જોતા એક વાત તો સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે અત્યારે કોઈને કોઈ ધોરણે આ વાત અટકવાની નથી। જમ્મુમાં મોબાઈલ સેવા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે। હાલ આ ખૂબ મોટી વાત કહી શકાય કે જે રીતે આ હુમલાની વાત સામે આવી રહી છે અને હુમલાને લઈને આરએસપુરા સેક્ટરની અંદર પણ બ્લેકઆઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। જોવાનું એ રહે છે કે શું આ સ્થિતિ વધારે વિપરીત સ્થિતિમાં જઈ રહી છે, ભારત માટે કેટલી મોટી ચિંતાની વાત છે, કેટલો મોટો ચિંતાનો વિષય છે, એ પણ આપણે આજે જ સમજી લઈશું। હું ચાહીશ કે પીસીઆરને કહેવા માંગીશ કે વિઝ્યુઅલ થકી પણ બતાવે, અનેક દ્રશ્યો તમને બતાવવા અત્યારે જરૂરી બની ગયા છે। જમ્મુમાં એર સ્ટ્રીપ પર હુમલાની આ ઘટના અને બ્લેકઆઉટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે, મોબાઈલ સેવા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે। જમ્મુ એરપોર્ટ પર સ્પષ્ટ રીતે અત્યારે એક ચિંતાનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે અને માત્ર ચિંતા કરતા પણ સૌથી વધારે સમજવું એ જરૂરી છે, જે યુદ્ધની વાત કરતા હતા, યુદ્ધથી જવાબની આપણે વાત કરતા હતા અને જવાબથી આખી પરિસ્થિતિને થાળે પાડવાની વાત કરતા હતા, એવા સમયે પાકિસ્તાને હુમલો કરી સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે। वैभव श्रीवास्तव ત્યાંથી આપણી સાથે જોડાया છે। वैभव, जिस तरह से जम्मू के अंदर एयर स्ट्रिप से हमले की बात आ रही है, ब्लैकआउट की बात आ रही है, क्या है अभी की स्थिति वहां पे? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही समय पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंकोर में जो है इलाके में जो है एक सायरन की आवाज सुनाई दी है और उम्मीद ये जताई है कि कोई मिसाइल का हमला हुआ है। हालांकि अभी थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ब्लैकआउट किस वजह से किया गया है। लेकिन अगर वहां पे सूत्रों के माने तो लगभग 2 से 3 मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई हैं और इसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में जो भारत में स्थित जो है एयर डिफेंस S-400 जो एयर डिफेंस है वो तो उसको मार गिराएगा। हालांकि थोड़ा सा वेट करना होगा कि आधिकारिक पुष्टि आर्मी की तरफ से या डिफेंस की तरफ से किस तरह की क्या जानकारी दी जाएगी। जी वैभव, सांबा के अंदर भारी गोलीबारी हो रही है पाकिस्तान से और ये भी एक रीजन कहीं ना कहीं बताया गया है, क्या ये बात सच है?
बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 22 अप्रैल के बाद से जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और जैसे कि कल रात को भी भारत के 15 शहरों में जो है हमला किया गया था, तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। और ऐसी भी जानकारी दी जा रही है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए हैं, हैवी मशीन गन से जो है वो फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से जो सेना है वो लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जी बिल्कुल वैभव, खासतौर पे अभी वहां क्या हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं नॉर्थ के सारे एरिया में एक पैनिक एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अनेक सारे ड्रोन दिखे गए, क्या उसकी कोई पुष्टि हुई है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें साफ तौर से जानकारी दे दी गई थी कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ड्रोन मिसाइल के माध्यम से जो है भारत पे हमला कर रहा है और भारत लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सभी स्टैंड बाई पे हैं और एयर डिफेंस SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो सारे एक्टिव हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को तरफ से। लेकिन देखना ये होगा कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि भारत जो है 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान दोबारा जो है हमला कर सकता है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर के सटे जो वहां पे अधिकृत POK है वहां पे अभी कुछ आतंकी एक्टिव हैं। और जैसे कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि आतंकियों को नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तो इंटेलिजेंस ने भी कुछ जानकारी इनपुट गृह मंत्रालय को और PM मोदी को भी दिया था। हालांकि इससे पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी से जब NSA चीफ जो है अजीत डोवाल मिले थे तो उन्होंने भी इसकी जानकारी दी थी। तो ऐसे स्थिति में उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हो सकता है देर रात को या फिर 24 से 48 घंटे में भारत दोबारा से स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया था अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोबारा पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप हैं या पाकिस्तान से सटे POK में अगर आतंकी संगठन जो एक्टिव है, जो वहां पे आतंकी हैं, तो उनको भी निस्तनाबूद किया जाएगा। जी खास तौर पे सिर्फ जम्मू नहीं, राजस्थान के ऊपर भी एक खतरे का कहीं ना कहीं वो पूरी सिचुएशन है, वो वॉर सिचुएशन दिख रही है। उन राजस्थान के अलग अलग जगहों को भी टारगेट किया गया है, क्या ये बात सच है? उसको लेके कुछ चीजें सामने आई है? बिल्कुल, सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, गुजरात है, अमृतसर है, पंजाब है, ऐसे कई इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जिसमें जो है लगातार पाकिस्तान जो है ड्रोन से हमला कर रहा है। और जैसे कि अब से कुछ ही देर पहले जो है जम्मू कश्मीर में भी ये पाकिस्तान के तरफ से मिसाइल दागी गई है। ये निकल के सामने आ रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो है उम्मीद यही जताई है गृह मंत्रालय या NSA की तरफ से जो है इसकी भी जानकारी दी जाएगी कि जो मिसाइल दागे गए हैं, जो ब्लैकआउट किया गया है, उसको लेके जो है भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और लगातार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से नाकाम कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, इन सभी जगह पे पाकिस्तान जो है लगातार ड्रोन से और मिसाइलों से जिस तरह से हमला कर रहा है, उसको देखते हुए लगातार जो है भारत एक्शन में है। और SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस और जो फाइटर प्लेन है वो सभी एक्टिव है और लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी 4 मिनट पहले पाकिस्तान के PM ने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात की, वो बात क्या थी? कुछ चीज सामने आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं वैभव एक चीज स्पष्ट है, राजनाथ सिंह ने भी आज या कल बताई गई थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये समझ के चले कि युद्ध की स्थिति का निर्माण हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से पाकिस्तान की हरकत है, जिस तरह से नापाक कोशिश किया जा रहा है, जैसे कल भी भारत के 15 जगहों पे जो है मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया गया था, तो उसी दौरान जो है आज जो है से जब NSA चीफ जो है मुलाकात किया था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंधु अभी नहीं खत्म हुआ है और भारत लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह से आज विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि ऑपरेशन सिंधु अभी तक खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान इस तरह से नापाक हरकत कर रहा है, इसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर
पाकिस्तान लगातार अगर इस तरह से करता रहेगा, इस तरह से नापाक हरकत करता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वॉर की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि स्पष्ट ये भी किया गया है कि भारत ने जो एक्शन लिया था वो केवल और केवल सिर्फ जो आतंकी संगठन है, जहां आतंकियों का लॉन्चिंग पैड है, हेडक्वार्टर है, उसको ही टारगेट किया था, पिन पॉइंट टारगेट किया गया, ना कि जो पाकिस्तान आर्मी है या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया है, तो अब तक 46 से ज्यादा लोग जो है वो सिविलियन जो है वो घायल हुए, 3 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कल गोलाबारी की थी, ड्रोन से हमला किया था, तो ऐसी स्थिति में जो है भारत सरकार जो है एकदम अलर्ट है और भारत सरकार जो है दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी तक वो खत्म नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम साफ तौर से कहा था कि जब तक आतंकी संगठन या आतंकी एक आतंकियों को जब तक निस्त नाबूद नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर कायम रहेगा। जी वो भारत बार बार आतंकी की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंकी की बात को नहीं समझ रहा है। वो हमले का रिएक्शन दे रहा है। वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को टारगेट कर रहा है, पंजाब को टारगेट कर रहा है, गुजरात को टारगेट कर रहा है, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में रोज ब्लैकआउट हो रहा है। अभी वापस वहां पे कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया है। तो जम्मू से लेके राजस्थान में भी कुछ ऐसी स्थिति अभी हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर की तो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ब्लैकआउट किया गया है, लेकिन 7 दिनों तक, अगले 7 दिनों तक जो है जो पंजाब की बात कर ले, हरियाणा, पंजाब हुए, जितने भी महत्वपूर्ण शहर है, चाहे वो गुजरात हो, अहमदाबाद की बात कर लिया, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, तो उस पर लगातार पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नाकाम कोशिश किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और अगर इस तरह से हरकत रही तो आने वाले समय पे एक भयानक ये वॉर की उत्पन्न हो सकता है। और पाकिस्तान को जो है लगातार भारत ने, चाहे वो 1971 की बात कर ले, कारगिल की, पुलवामा, उरी अटैक की बात कर ले, लगातार भारत ने जो है यूएनएससी में और पाकिस्तान को हर तरह के सबूत दिए थे कि पाकिस्तान जो है जो आतंकी संगठन है उनको वहां पे पाल रहा है और भारत पे बड़े हमले कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको खत्म करना चाहिए, उस पर चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया जाता। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान के मंत्रियों का बयान आ रहा है कि भारत जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था, ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था, उस पे किसी भी प्रकार का जो वहां पे सिविलियन है, बिल्कुल आप हमारे साथ